Hello children, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to learn Hindi grammar. Okay, this Hindi grammar is for high school students, 8th, 9th, 10th standard. Okay, from the ICSE syllabus. So we will follow the same order what is given in the textbook. The textbook starts with the exam paper pattern. Okay, so we will see how it will be. बोर्ड द्वारा निर्गमित नवीनतम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल सहित with the solution they have given the question paper pattern for the grammar part. Okay, firstly they have given the instructions. In the question paper you will be having instructions, right? Answers to this paper must be written on a paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to be spent in reading the question paper. The time given at the head of this paper is the time allowed for writing the answers. This paper comprises of two sections, section A and section B. Attempt all the questions from section A. Attempt any 4 questions from section B. Answering at least one question from the 2 books you have studied and any 2 other questions. The intended marks for the questions or parts of the questions are given in the brackets. So the section A is for 40 marks. You need to attempt all the questions. Okay. So the first question is, write a short composition in Hindi in approximately 250 words on any one of the following topics. They have given 5 topics, children. So you need to select any one topic and you have to write the short composition approximately having 250 वर्ड्स. ओके, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 250 वर्ड शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखिए. So you can select any of the 5 topics and you can start writing the composition having approximately 250 words in it. So what are the topics they have given? अपने स्कूल की तरफ से की गई ट्रेकिंग यात्रा का वर्णन कीजिए. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक इज, क्या ईश्वर है विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार उदाहरण सहित दीजिए. सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक. थर्ड टॉपिक इज, रेलवे स्टेशन पर बिताई गई एक रात बताइए कि उस समय आप कहाँ जा रहे थे, आपके साथ कौन कौन थे और आपका समय किस प्रकार व्यतीत हुआ. फोर्थ टॉपिक इज, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. उक्ति के आधार पर एक मौलिक कहानी लिखिए. एंड द फिफ्थ टॉपिक इज, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए. So they have given 5 topics, children. You can choose any of the topic and you can start writing the composition. Okay, they have given the question paper with the solution, right? So they have written the composition for all the topics. You can refer to the content what they have given and you accordingly you can write it. Okay, you did not exactly write whatever they have given. You can just take it as a reference and you can write it in a similar way. So the first topic they have covered is, अपनी स्कूल की तरफ से की गई ट्रेकिंग यात्रा का वर्णन कीजिए. So on this topic they have written the composition. Okay, so we'll see what they have written. मनुष्य अपने जिज्ञासु स्वभाव एवं खतरों से जूझने की प्रवृत्ति के कारण नए नए स्थानों का भ्रमण करता है तथा प्रकृति की बाधाओं पर
विजय पाने की चेष्टा करता है। पर्वतारोहण भी इसी प्रकार की चेष्टा है। पिछले माह हम ग्रीष्मावकाश में स्कूल की तरफ से ट्रेकिंग के लिए शिमला गए। हमारे साथ हमारे 4 अनुभवी अध्यापक भी थे जो पहले भी स्कूल के बच्चों को लेकर यहाँ आए थे। हमारे लिए यह ट्रेकिंग का प्रथम अवसर था। इसे लेकर हम बेहद रोमांचित थे। ट्रेकिंग प्रारंभ करने से पूर्व हमारे अध्यापक ने हमें 2 दलों में बांट दिया। प्रत्येक दल में 10-10 बच्चे थे। फिर उन्होंने ट्रेकिंग संबंधी ज़रूरी निर्देश दिए। हमने अपनी ज़रूरत के सभी उपकरण रख लिए थे, जिनमें मजबूत रस्सियाँ, खूंटियाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक चिकित्सा का सामान इत्यादि था। हमने वहाँ के एक स्थानीय अनुभवी पर्वतारोही को भी शामिल कर लिया था ताकि किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ट्रेकिंग के लिए हमने विशेष वस्त्र और जूते पहने। फिर रस्सियों के सहारे धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया। कुछ बच्चे बेहद उत्साहित लग रहे थे, जबकि कुछ बच्चे भयभीत हो रहे थे। ऐसे समय में सहयोग तथा सहनशीलता की अत्यंत आवश्यकता होती है। हम सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे थे। अभी थोड़ी ही चढ़ाई तय की थी कि मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान पर बादल छा गए। ऐसा लगने लगा घनघोर बारिश होगी। सभी सोचने लगे कि वर्षा में हम इतनी ऊंचाई पर कैसे जा पाएंगे। बारिश में पैर फिसलने के साथ साथ पत्थरों के गिरने मानी लैंडस्लाइडिंग का भय रहता है। पर भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में बादल छंट गए। हम सब ने राहत की सांस ली। सभी बच्चे धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे कि अचानक हमारे दल के एक लड़के का पैर फिसल गया और वह चीख पड़ा। कमरे में मजबूती से रस्सी बांधे कमर में मजबूती से रस्सी बंधे होने के कारण वह बच गया। हाँ, उसके पैर पर हल्की सी चोट आई थी, पर हमारे अध्यापक ने उसके पैर पर दवाई लगा दी। किसी तरह हम धीरे धीरे चढ़ते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही सब प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने चढ़ाई पूरी कर ली है। अब हमें थकावट के साथ साथ जोरों की भूख लग आई थी। वहीं हमने खाना खाया और मनोरंजन किया। थोड़ा विश्राम करने के बाद अध्यापक ने हमें नीचे उतरने के निर्देश दिए। उतरते समय हमें उतना डर नहीं लगा जितना कि चढ़ते समय लगा। धीरे धीरे हम उतरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। यह मेरे जीवन का प्रथम अनुभव था। नीचे आकर मैंने सोचा, चित्रों में जो पहाड़ इतने सुंदर प्रतीत होते हैं, वास्तव में उतने नहीं होते। इस अनुभव का रोमांच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन
children, for the topic, for the first topic which we had, अपने स्कूल की तरफ से की गई ट्रेकिंग यात्रा का वर्णन. ओके, यू कैन राइट द कॉम्पोजिशन इन द सिमिलर वे. So in this video we have covered the first topic, and in the next video we are going to see what we can write it for the second topic, children. Thank you for watching my video, children.